السلام علیکم دوستوں، ایک بہت بڑا واقعہ نکل کے سامنے آ چکا ہے۔ جیسے ہی ہم سبھی لوگ جانتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پلے کارڈ لے کر نوجوان لوگ روڈوں پر نکل رہے ہیں۔ ابھی اس وقت دیکھیے 350 لوگوں پر FIR درج ہو چکا ہے۔ ابھی یہ نوجوانوں کی کیا غلطی تھی آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کے MLA محمد مبین نے کونگل، جو کہ تلنگانہ چیف منسٹر ریونت ریڈی کا اپنا کانسٹیٹوئنسی ہے، وہاں پر مزار قبرستان اور عاشور خانے ڈیمولش کر دیے گئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ 3 قبرستان کی دیواریں، 2 درگاہیں اور 2 عاشور خانے ڈیمولش کر دیے گئے ہیں۔ 2 بجے اندھیرے میں 3 قبرستان، ایک محبوب سبانی کا چلہ اور ایک عاشور خانہ اور ایک درگاہ کو شہید کیا گیا۔ ہم اس کو سختی کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اور جیسے ہی اطلاع ملی ہمارے یہاں کے جو مقامی صدر ہے جناب SB گلشن صاحب رات کے 2:30 بجے اپنے گھر سے نکل کر سائیکل موٹر کے اوپر وہ قبرستانوں کو بچانے کے لیے اور درگاہ کو بچانے کے لیے پہنچتے ہیں، لیکن ان کو پولیس، وہ تنہا تھے، پولیس ان کو رات کے 2:30 بجے گرفتار کر لی۔ اور جیسے ہی اطلاع صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ کو دی گئی، تو انہوں نے ہمارے وقار آباد ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ اور یہاں کے وقار آباد ڈسٹرکٹ کے تمام اراکین کو، کمیٹی کو کونگل جانے کے لیے کہا گیا، لیکن ان کو چنگامل پولیس اسٹیشن کے قریبی ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کو 5 بجے کے بعد چھوڑا گیا۔ پھر اس کے بعد صدر محترم نے مجھ کو ٹیلی فون کر کر بتایا کہ آپ امیڈیٹ کونگل کے لیے جائیے، تو میں ہادی صاحب کو ٹیلی فون کیا کہ آپ کہاں پر ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پولیس کے ساتھ میں کو حیدرآباد لے آیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کسی بھی طریقے سے چوڑلہ کے پاس اتر گئے، وہاں سے میں ان کو لے کر کونگل کو آیا، اور یہاں پر آنے کے بعد میں ہم پورے جتنے قبرستان تھے ان قبرستانوں کا مشاہدہ کیے، اور محبوب سبانی کا چلے کو آ کر دیکھے۔ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ کہیں پر بھی اگر روڈ بائنڈنگ ہوتی ہے، چاہے کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے ہندو ہو یا مسلمان ہو یا سکھ ہو عیسائی ہو، ان کی عبادت گاہوں کو، ان کے قبرستانوں کو محفوظ کرتے ہوئے روڈ بائنڈنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں کی عوام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے کونگل کے جو میونسپل کمشنر ہے ایک تعصبیت رکھتے ہیں، انہوں نے اپنی تعصبیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے رات ان قبرستانوں کو مسمار کر دیا، اور ہم اس کے خلاف میں احتجاج کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم وقف بورڈ کے CEO صاحب اور چیئرمین صاحب سے بھی یہی گزارش کرتے ہیں کہ ان کے خلاف میں ابھی ہم DSP وقار آباد سے اور CI کونگل سے بھی ملاقات کیے، اور انہوں نے تیقن دیا ہے کہ ایک میمورنڈم دیا جائے، ہمارے ہادی صاحب کی قیادت میں ایک میمورنڈم بھی دیا جائے گا، اور کمشنر کونگل کے خلاف میں ایک FIR بھی درج کروائیں گے۔ جو بھی قانونی لڑائی ہے انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین لڑے گی، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمارے گریو یارڈز تھے، جہاں سے ہمارے قبرستان تھے، وہیں سے ہماری باؤنڈری والز کو اٹھا کر ہمارے حوالے کیا جائے، تاکہ مسلمانوں کو جو تکلیف بھی ہے وہ تکلیف دور ہو سکے۔ کیونکہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 سال 200 سال کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی 5 سال پہلے یہاں پہ تدفین کیا گیا ہے، تو اس طریقے سے یہاں کی عوام کا اسٹیٹمنٹ ہے۔ تو لہٰذا میں عوام سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج ہے قانون کو ہاتھ میں نہ لیتے ہوئے پرامن احتجاج کیا جائے، کیونکہ جمہوری ہمارا حق ہے، کیونکہ ہماری عبادت گاہیں، ہماری قبرستانیں، ہماری درگاہیں غیر محفوظ ہے۔ تو لہٰذا ہم کو پرامن طریقے سے جو بھی احتجاج کرنا ہے پرامن طریقے سے کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ تمام رپورٹ ہم صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ممبر پارلیمنٹ کو اور حبیب ملت عالی جناب اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ کو دیا جائے گا، تاکہ اس طریقے کی جو بھی حرکت ہے انشاءاللہ تعالی تلنگانہ کے اندر کہیں پر بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا میں آپ تمام کا یہاں پر آنے کے لیے یہاں کے عوام کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ صبح سے، کیونکہ ہمارے تمام مجلس کے ورکروں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، تو ہم SP صاحب سے صبح میں بھی بات چیت کیے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ وقار آباد کے SP صاحب چھوٹا معاملہ ہے، ہم یہاں پر آ کر
देखते हैं तो छोटा मामला नहीं, बल्कि यहाँ पर 3-3, 4-4 कब्रस्तानों को मुस्मार किया गया है। तो लिहाजा पुलिस और एमसी है, जो भी है यहाँ की म्यूनसिपालिटी, मिलकर मिली भगत से इन कब्रस्तानों को शहीद किया गया है। तो लिहाजा हम सदर मोहतरम को कल रिपोर्ट दिया जाएगा, कायदे मुखन्ना को भी एक मेमोरेंडम दिया जाएगा, ताकि इसके खिलाफ में जो भी कार्रवाई हो सकती है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारे यहाँ के जो वक्फ बोर्ड का अमला भी आया है, हम उनसे भी गुजारिश करते हैं कि वो जो भी रिपोर्ट है आप रिपोर्ट दें, और एक कंप्लेंट आपकी तरफ से भी एक कोलंगल कमिश्नर और जो भी अहदेदार इसके अंदर मुलाविस है उनके खिलाफ में एक आप कंप्लेंट दिया जाए, ताकि एफआईआर बुक कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये वीडियो केसरगंज बहरे से निकल के सामने आया है। जगह जगह नौजवान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बैनर लेके निकल रहे हैं। इससे मुतालिक एक और वीडियो निकल के सामने आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक्स प्रेसिडेंट, जिसका नाम फैज हसन खान, वो एक डॉक्टर भी है, वो एक रैली निकाले थे और उनके साथ 350 नौजवान मौजूद थे। ये नौजवानों के ऊपर इल्जाम है कि वो लोग सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे। इस तरह का इल्जाम लगा है। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज भी कर दी गई है। जब भी कोई प्रोटेस्ट हो, प्रोग्राम हो, तो इतना बेहतरीन तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से होना चाहिए, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज होगा, आपस में अगर इधर उधर भागना, दौड़ना या आगे पीछे होना अगर होगा, तो ये प्रोटेस्ट का मकसद और मैसेज नहीं अच्छा जाएगा। इसलिए कम से कम 2 लाइन हो, एक स्पेस हो, और सीधे नारा लगाते हुए आपको जहां तक वहां तक जाना है, जहां तक के हमारा एम है वहां तक पहुंचना ही मकसद है। हमारी किसी से बहस नहीं होनी चाहिए, राहगीरों से हमारी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई रुकावट भी नहीं होनी चाहिए, और नारा ऐसा लगना चाहिए कि कोई जो निकले हमारे बगल से तो वो देखे कि हाँ, कैसरगंज की आवाम ने अपनी जिंदा दिली का सबूत दिया है यहाँ पर खड़े होकर के। अल्लाह के हाँ, कोई आगे पीछे दौड़े नहीं, भागे नहीं, किसी एक को किरास न करे। एक आदमी जो तिरंगा लेगा, जो बड़ा सा बैनर होगा, वो खड़ा होगा आगे, उसको क्रॉस नहीं करना है किसी को। और दूसरी लाइन, जो 2 लाइन है, एक दूसरे के पीछे कहीं गैप नहीं, सबका फोटो, सबका वीडियो आएगा। मैसेज है हमारी मुत्तहिदी दिखाना मकसद है। इसीलिए क्योंकि पूरी दुनिया में, पूरे भारत में हर जगह से मैसेज गया, हमारे कैसरगंज से नहीं गया था, इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी। अभी इनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज हो चुका है, और ये जो रैली निकाले थे उन तमाम नौजवानों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है। इससे मुतालिक इनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। आदाब। हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया कैसरगंज में। आइला मोहम्मद का जो 4 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ कानपुर में, और 10 तारीख को उन पर एफआईआर हुआ एक बैनर के नाम पर। तो उसके लिए पूरे भारत में एहतजाज हुआ आइला मोहम्मद को लेकर के। उसी रो में हमने कैसरगंज में प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट में हमेशा मैंने ये कोशिश किया कि सड़क पर कोई भी लड़का जो है रास्ता न रोके, किसी के साथ कोई उलझे नहीं। पुलिस अगर रोके तो उनसे बड़े प्यार से बात करना है। कानून का जो दायरा है वो कानून के दायरे के तहत चले, तिरंगे झंडे का सम्मान करते हुए आगे उसको लेकर के चले। और जो हमारा मकसद था कि एक मेमोरेंडम देना, और मेमोरेंडम में ये बात करना कि जो कानपुर में एफआईआर हुई है उसको क्वैश किया जाना चाहिए, वापस लेना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। और ये चूंकि अजमत, जो हुजूर की अजमत है, वो मुसलमानों की अपनी जान, माल, इज्जत, आबरू, शान, शौकत से बढ़कर है उनके लिए। तो इसलिए अगर उनके और ये संविधान हमें इजाजत देता है कि हम किसी को, हम अगर नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, अल्लाह पर यकीन रखते हैं, हुजूर की शान में अगर हम लोग जो है मोहब्बत करते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी फख्र की बात है, और ये संविधान हमें इजाजत देता है। संवैधानिक तरीके से एक प्रोटेस्ट हुआ, और प्रोटेस्ट में बहराइच पुलिस ने, जो कैसरगंज की पुलिस है, उसने एफआईआर दर्ज किया, जिसमें मेरा नाम और प्रमुख रूप से और 350 और लोगों का नाम, आसपास के जो नौजवान वहां पर इकट्ठा थे। तो ये करके कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जो है हुजूर से मोहब्बत और अजमत में जो चीज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते मोहब्बत, यानी कि हम मोहब्बत भी अब इस देश में जता नहीं सकते। ये कितने अफसोस की बात है। हाँ, कोई बात नहीं, आप मुकदमा करिए, 1000 मुकदमा, 1000 बार जेल जाएंगे, फिर आएंगे, फिर हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे, आपके खिलाफ कोर्ट में चैलेंज जरूर करेंगे, आप जवाबदेही होंगे कोर्ट में। और कोई भी हिंदुस्तान का कोई भी नौजवान इस बात से बिल्कुल मत डरे कि उसके ऊपर वो मोहब्बत करने में या प्रोटेस्ट करने में या आई लव मोहब्बत लिखने में।
مجلس اتحاد المسلمین کے MLA ابھی کنڈاگل پہنچ چکے ہیں۔ کنڈاگل میں جو واقعہ پیش آیا ہے، جو قبرستانوں کو لے کر ایک بڑی اپڈیٹ نکل کے سامنے آئی ہے۔ دیکھے ذرا थोड़ा उधर थोड़ा प्रॉब्लम है। कहाँ पर? आप किधर आ रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? मैं परगी को जा रहा हूँ मैं। परगी में हाँ, क्या प्रॉब्लम है बोलो? थोड़ा लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, हम बात करते हैं थोड़ा अंदर। तो हमारे को क्या लेना देना, हम हमारी जगह पे जा रहे हैं। ఇద్దరు కొంచెం లోపలికి మాట్లాడుతున్నారు సార్, ఎవరు మాట్లాడినా లోపలికి పంపి ఫస్ట్ ఏ లోపలికి బండి పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికి తీసుకురా first. आप हटो, मैं बात कर। बोलिए सर, क्या बोलिए। हिंदू को అది ప్రివెంటివ్ నోటీస్ ये प्रिवेंटिव हिंदू को అక్కడికి పోతే అది కొద్దిగా రాండి ये कड़ा कोड़ंगल, मैं कोड़ंगल नहीं जा रहा हूँ, परगी को जा रहा हूँ मैं। తెలుసు సార్ हाँ, రండి ఏం కదా नहीं कैसा आप नहीं रोक सकते, कोई आपका नहीं वो है, वारंट है आपका, नहीं कोई नोटिस है। ప్రివెంటివ్ సార్ प्रिवेंटिव ऐसा नहीं ले सकते ना, प्रिवेंटिव आई एम राउडी शीटर क्या आप ऐसा प्रिवेंटिव फिर पॉलिटिकल नहीं रोक सकते आप लोग। कोई लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। రండి సార్ ప్లీజ్ కోఆపరేట్ नहीं आई नॉट మీరు సంగారెడ్డి వచ్చినప్పుడు మాకు కలవలేరా जी। సంగారెడ్డి వచ్చినప్పుడు हाँ। మాట్లాడినాం కదా नहीं ऐसा नहीं रोक सकते साहब, आपके एसपी का नंबर जो मैं बात करता हूँ, ऐसा कैसा रोकते आप? यू कैनॉट स्टॉप। बोलो आपके एसपी। చాయ్ అయిపోతుందండి चाय वाय नको, अभी भी हम सब चाय पी लिए, इडली खा लिए, सब खा लिए। आपके एसपी साहब बोले ना थोड़ी देर में మీరు మాట్లాడడానికి కూడా టైం ఇచ్చాం కదా మీకు ఛాన్స్ ఇస్తున్నా కదా नहीं, चांस आप नहीं दे रही, आप जुलूम कर रही। रेवंत रेड्डी का जुलूम हो रहा है ये। हाँ, रेवंत रेड्डी का जुलूम हो रहा है। जैसा केसीआर जुलूम करा मुसलमानों पे, हारा ना इलेक्शन, वैसा रेवंत रेड्डी का जमानत नहीं बचती उसकी, देख लो आप नेक्स्ट टाइम। अरे दरगाह तोड़ दे रही, खबरस्ताना तोड़ दे रही, जाके देखना भी नहीं बोले तो कैसी बात बोलो आप? हैं? कैसी बात साहब, ये तो जुल्म हो। कल पुलिस की जानिब से अमजदुल्ला खान को डिटेन किया था, लेकिन आज रिलीव किया है।